ধন্যবাদ। আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা, দেশৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট নেতা আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এটা আজিৰ কাৰণে আমাৰ ডুমডুমা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বাবে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন। 1971 চনত ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়া এই ডুমডুমাত পদাৰ্পণ কৰাৰ পিছত আজি দীৰ্ঘ 50 বছৰৰ পিছত তেখেতৰ বংশজ আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ডুমডুমাত পদাৰ্পণ কৰিছেহি। এইটো আমাৰ বাবে এটা আশীৰ্বাদ স্বৰূপ। আমি সকলোৱে হাত চাপৰিয়ে তেওঁক সম্বৰ্ধনা অভিনন্দন জনাওঁ। ধন্যবাদ। আমি সেই প্ৰিয় নেতাজনক ডুমডুমা সমষ্টিবাসীৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি জীৱন কুমাৰ ডাঙৰীয়া, ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক তথা এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা ভূমিজ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছো। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ইয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰিয় নেতাজনক ডুমডুমা সমষ্টিৰ হৈ আমাৰ বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজ ডাঙৰীয়া শৰাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। ইয়াৰ পিছতে মই যুৱ কংগ্ৰেছৰ বন্ধুসকলক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। তেখেতসকলে মাননীয় নেতাজনক সম্বৰ্ধনা জনাব। তাৰপিছতে মহিলা কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আহিব। তাৰপিছতে আমাৰ ডুমডুমা সমষ্টিৰ NSUI, মজদুৰ কংগ্ৰেছ আৰু প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ হৈ সম্পাদিকা মীনা আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু ভোজপুৰী পৰিষদৰ হৈ সন্তোষ শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰথমতে মই যুৱ কংগ্ৰেছৰ ডুমডুমা সমষ্টিৰ সভাপতি প্ৰমুখ বিষয়ববীয়াসকলক মাননীয় নেতাজনক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পিছতে মই মহিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহি আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাই যেন। ইয়াৰ পিছতে NSUIৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক মই আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ মাজত আমাৰ দেশৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা, কংগ্ৰেছ দলৰ বিশিষ্ট নেতা আৰু যিজন নেতাই আজি আমাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্য তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে
সেই মহান নেতা ছত্তীশগড়ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ সিং বাঘেল ডাঙৰীয়াক আমাৰ বিধায়ক তথা প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা মিছ ডাঙৰীয়াই সম্বৰ্ধনা জনাব। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক বিধায়ক দুৰ্গা মিছ ডাঙৰীয়াই এখন গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। ভোজপুৰী পৰিষদৰ আঞ্চলিক সভাপতি সন্তোষ শাহ ডাঙৰীয়াই মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাব। ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক তথা আমাৰ এই অবিভক্ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এজন শক্তিশালী নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াক আমাৰ আজাদ ডাঙৰীয়াই আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ মাজত আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিসকলক উদ্দেশ্যি আৰু আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি আদৰণি ভাষণ ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা এইবাৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা মিছ ডাঙৰীয়াক দাঙি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পূৰ্বৰ সভাপতি শ্ৰী জয়ন্ত কলিতাক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছো। আমার জনপ্রিয় নেতা हमनिकर नेता इंदिरा गांधी के दिन कर महात्मा गांधी कर सोनिया गांधी कर जवाहरलाल नेहरू दिन कर हमने के राजनीतिक दल के नेता कांग्रेस के नेता हमने के राहुल गांधी आई गई। राहुल गांधी आले बहुत सुंदर सुंदर 5टा ग्यारंटी होते आहे मैं भाषण नहीं रखम আপনার ভাই হিসাবে বেটা হিসাবে আপনার বন্ধু হিসাবে কবাত যদি মই ত্ৰুটি কৰিছো কথা বতৰা যদি মই ত্ৰুটি কৰিছো তেন্তে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব আৰু অহা 27 মাৰ্চ তাৰিখে আপোনালোকে 7টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া হাতৰ চিনত ভোটটো দি পেলাই আপোনাক জয়যুক্ত কৰিব মই আশা ৰাখিলো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দুৰ্গা মিছ ডাঙৰীয়া। এতিয়া মই আমাৰ মাননীয় নেতা ছত্তীশগড়ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন্দ্ৰ সিং বাঘেল ডাঙৰীয়াক আপোনালোকক উদ্দেশ্যি এই নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। दुमदुमा के इस विशाल आम सभा में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी दंगोड़िया, आदरणीय जितेंद्र सिंह दंगोड़िया, प्रद्युत बरदोली दंगोड़िया,
जीवन कुर्मी दंगोड़िया, विकास उपाध्याय दंगोड़िया, दुर्गा भूमि दंगोड़िया, श्रीनाथ चेटिया दंगोड़िया, हीरा देवी दंगोड़ियानी, राजेश तिवारी दंगोड़िया, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों या साथियों, पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, पत्रकार साथियों, विधानसभा के चुनाव मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, स्थिति बहुत स्पष्ट होती जा रही है। लेकिन मैं आपको 5 साल पुरानी कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपसे कहा था टी वर्कर्स को 351 रुपया देंगे, ब्रह्मपुत्र के किनारे दोनों साइड एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, किसानों के आय दुगुनी करेंगे और उन्होंने कहा था 50 लाख घुसपैठिए को बाहर भेजेंगे, बांग्लादेश सीमा को सील करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आसाम का आनंद सर्वानंद। याद है? लेकिन आसाम के लोगों को आनंद नहीं आया। सर्वानंद तो मुख्यमंत्री बन गए, आसाम के लोगों को आनंद नहीं मिला। आनंद मिला है तो सिंडिकेट को, आसाम में सर्वानंद, सिंडिकेट को आनंद, आसाम में सर्वानंद, सुपारी सिंडिकेट को आनंद, आसाम में सर्वानंद, मछली सिंडिकेट को आनंद, आसाम में सर्वानंद, कोयला सिंडिकेट को आनंद। अरे और तो और जिस गौ माता के नाम से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, वो गौ तस्कर बांग्लादेश में आसाम के जो गाय है वो जा रही है और 200% वहां के गोमांस की विक्रय बढ़ा है। तो आसाम में सर्वानंद, गौ तस्कर सिंडिकेट को आनंद, सिंडिकेट को आनंद मिला है, आसाम के लोगों को कुछ नहीं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत ज्यादा बातें आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बात याद दिलाना चाहता हूं। ये ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अंग्रेज के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं, अंग्रेजों के साथ देने वाले लोग हैं। वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, वो अंग्रेज जो फूट डालो राज करो की नीति पे चलते रहे, और वही नीति भारतीय जनता पार्टी की है कि प्रांत प्रांत वालों के बीच झगड़ा करा दो, एक जाति से दूसरे जाति के झगड़ा करा दो, एक भाषा से बोलने वाले से दूसरे भाषा वाले की झगड़ा करा दो, एक धर्म मानने वाले से दूसरे धर्म की झगड़ा करा दो और फूट डालो राज करो, ये उनकी नीति। दूसरी तरफ कांग्रेस ने विभिन्न प्रांत के लोगों को जोड़कर, विभिन्न भाषा भाषी को जोड़कर, विभिन्न जाति संप्रदाय धर्म मानने वाले को जोड़कर देश को एकजुट किया। वो महात्मा गांधी के नेतृत्व था, वो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व था, वो नेतृत्व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नेतृत्व था, जो देश को एक सूत्र में बांधा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व था, ये सब एक सूत्र में बांधे, और जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो सारे अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं,
ये फूट डालो राज करो की बात तो कहते हैं, लेकिन दूसरी बात, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो सोने की चिड़िया को लूट के ले गए। ये वेस्ट इंडिया कंपनी बनाए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति को कुछ लोगों को सौंप देना चाहते हैं। दूसरा सवाल करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने देश को एक सूत्र में बांधकर देश की आजादी की लड़ाई जीती ही नहीं, देश का निर्माण भी किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो 3 साल अपना भी जोड़ लेते हैं मोदी जी, क्योंकि 1947 से 2017 70 साल होते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 6 साल जोड़ लेते हैं, मुराद देसाई का भी 2.5 साल जोड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, जिस अस्पताल में आप पैदा हुए हो ना, वो अस्पताल कांग्रेस ने बनवाया था। जिस स्कूल में तुम पढ़े हो, वो स्कूल कांग्रेस ने बनवाया। जिस कॉलेज से तुम पढ़ के निकले हो, वो कॉलेज कांग्रेस ने बनवाया। जिस सड़कों पे चलते हो, वो कांग्रेस ने बनवाया। अरे जिस लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की, संविधान का लागू करने का काम कांग्रेस ने किया, उसी के बदौलत तुम विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हो। ये प्रजातंत्र लाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने आपको अधिकार देने का काम किया है। रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सारे काम कांग्रेस ने किया है। ये लोग तो लूटने वाले काम, लूटने का काम सब कुछ लोगों के हाथ में सौंपने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये एयरपोर्ट बेच रहे हो, बरदोई एयरपोर्ट, वो क्या तुम्हारे दादाजी ने बनाया था? यहां के ओएनजीसी जो बेच रहे हो, क्या तुम्हारे नाना ने बनाया था? यहां के ऑयल फील्ड बेच रहे हो, तुम्हारे काका जी दहेज में आया था? यहां के रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, अब तो किसान के जमीन पे निगाह इनकी है। आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये केवल आपके भावनाओं के साथ शोषण, खिलवाड़ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं आपको। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, लेकिन ये बताना जरूर चाहता हूं, आज से ठीक 2.5 साल पहले राहुल जी छत्तीसगढ़ गए थे। वहां के किसानों से कुछ बातें उन्होंने कही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाई है, किसानों का ऋण माफ होगा। किसानों से कहा कि आपके धान की कीमत 2500 रुपये में खरीदी जाएगी। वहां जीते आज हमारे विधानसभा में 90 की विधानसभा में 70 विधायक कांग्रेस के हैं। राहुल जी भी विश्वास किया। और आपको बताना चाहता हूं, राहुल जी हमारे शपथ ग्रहण में आए, हम लोगों को शपथ कराए, हम लोग एयरपोर्ट छोड़ने गए। राहुल जी दिल्ली नहीं उतरे थे, 18 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा। आज छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा और 17,322 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। तो जो राहुल जी ने कहा, छत्तीसगढ़ में वही हुआ। आदरणीय साथियों, मैं आसाम के साथियों से, दुमदुमा के साथियों से, इस जिला के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करिए कांग्रेस पर, विश्वास करिए हमारे नेता पर। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वादा निभाया गया, आसाम में भी वही बातें होगी जो राहुल गांधी जी बोलेंगे। अभी आपके बीच में आएंगे, आपसे कुछ वादा करेंगे, कुछ बातें करेंगे, नौजवानों से, महिलाओं से, यहां के निवासियों से, यहां के टी वर्कर्स से बात करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, वैसे आसाम में होगा। तो मैं बहुत ज्यादा और
वक्त नहीं लेते हुए आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई यहाँ के किसानों की है, ये लड़ाई यहाँ के टी वर्कर्स की है, ये लड़ाई यहाँ के नौजवानों की है, ये लड़ाई यहाँ के माताओं बहनों की है, ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है। और मैं इसीलिए कहता हूं, क्या आप लड़ना चाहते हैं? मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे। आवाज पूरी पीछे तरफ से आना चाहिए, इधर से भी आना चाहिए, मुट्ठी तान के लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय अखम, जय अखम। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय अखम, जय छत्तीसगढ़। ধন্যবাদ আমার অতি প্রিয় নেতা ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় বাঘেল ডাঙৰীয়া। আমি কংগ্ৰেছ পৰিয়ালে আপোনাক সদায় স্মৰণ কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ যি ভাষণ, যি আপুনি উদাত্ত কণ্ঠৰে আপুনি ক'লে, আহ্বান জনালে, সেই আহ্বান এতিয়া মই আমাৰ অসমৰ এজন অতি বিশিষ্ট নেতা, কংগ্ৰেছ নেতা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক তেখেতক ভাষণ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাইজ, আজি আমাৰ মাজত আমাৰ এই তিনচুকীয়া জিলাৰ এই ডুমডুমালৈ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছে। আপোনালোকে সকলোৱে তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এজাউৰি হাত চাপৰিৰে সৈতে তেখেতক আদৰণি জনাওক। ৰাহুল গান্ধীজী আজি আমাৰ মাজলৈ আহিছে আপোনালোকক লগ পাবৰ কাৰণে। ৰাইজ, মনত ৰাখিব, কংগ্ৰেছ দলে যুগে যুগে অসম আৰু অসমৰ বহল অৰ্থত বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্ম জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক কংগ্ৰেছ দলে সদায় বুকুৰ মাজত সুমুৱাই অসমখনক আগুৱাই লৈ গৈছে। বিশেষকৈ অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ চাহ মজদুৰসকলৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ দেশ পৰাধীন আছিলে, তেতিয়া এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ শ্ৰমিকসকলক ব্ৰিটিছে বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিলে, একেবাৰে বৰ বেলেগে ৰাখিছিলে। তেতিয়া মনত ৰাখিব, কংগ্ৰেছ দলৰ ভলণ্টিয়াৰসকলে মনে মনে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ ঘৰত থাকি মনে মনে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মংগলৰ কাৰণে চাহ জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি পেলাই অসম চাহ মজদুৰ সংঘটো তৈয়াৰ কৰিছিলে। আৰু কংগ্ৰেছে যেতিয়া দেশ স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথম চৰকাৰখন গঠন কৰিলে, প্ৰথম চৰকাৰখন গঠন কৰি দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছত আমি কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মংগলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষা থকা স্বাস্থ্য সকলো ক্ষেত্ৰকে সামৰি টি প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ এক্টখন কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে জাৰি কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছত আমি সদায় চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ কাৰণে, আমাৰ সমাজৰ সকলো লোকৰ কাৰণে, সাধাৰণ লোকৰ মংগলৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আহিছো। আজি আমাৰ নেতা শ্ৰী ৰাহুল গান্ধীয়ে আপোনালোকক দুআষাৰ ক'ব। আৰু আপোনালোকৰ যিজন স্থানীয় বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজ আপোনালোকৰ বিধায়ক, আমি আশা কৰিছো এনে এজন নিষ্ঠাবান, এনে এজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমী ব্যক্তিক আপোনালোকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ দিব। ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এজন যোগ্য, এজন নিষ্ঠাবান, এজন সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি দৰদী এই দুৰ্গা ভূমিজক আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰক্ষেপণ কৰিছো। আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব। এতিয়া মই উদ্যোক্তাসকলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ নেতা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ
নেতা শ্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক দুআষাৰ কবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো। जय आय अहोब। जितेंद्र सिंह जी, प्रद्योत बोरदोलोई जी, जीवन कुर्मी जी, जयंत कलिता जी, दुर्गा भूमि जी हमारी कैंडिडेट, सिभान चेटिया जी, हीरा देवी जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ साल पहले दिल्ली में और असम में बीजेपी की सरकारें आई और आज मेरी कॉलेज स्टूडेंट से बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि देश में आजकल रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है। आप किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए और आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर पा रहा है। ये सच्चाई है, ये असम की सच्चाई है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई। प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े भाषण दिए हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग नारे दिए हैं, मगर रोजगार हिंदुस्तान में आजकल नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 6 सालों में इन पर असम की सरकार और दिल्ली की सरकार ने आक्रमण किया है। आपको याद होगा 8 बजे रात को बिना किसी से पूछे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की। याद है आपको? भूल गए? भूल गए? हिंदुस्तान का कोई नहीं भूल सकता, कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं भूल सकता कि पूरे देश को प्रधानमंत्री ने 8 बजे रात बोला कि 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। सारे के सारे छोटे मिडिल साइज बिजनेस नष्ट हो गए, खत्म हो गए। उस एक कदम से नरेंद्र मोदी जी ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया, देश को चोट मारी। आपसे झूठ बोला कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है, स्टेज से झूठ बोला। क्या काला धन मिट गया? खत्म हो गया काला धन? नहीं। नोटबंदी के पीछे लक्ष्य था गरीबों के जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3 लोगों के जेब में डालना। उसके बाद वहां नहीं रुके,
उसके बाद जीएसटी, जिसको मैंने गब्बर सिंह टैक्स कहा। गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। किसके ऊपर टैक्स? हिंदुस्तान की गरीब जनता पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों पर। जो नोटबंदी से बच गए वो जीएसटी में डूब गए। और आज हालत यह है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। ना कोई फैक्ट्री खुलती है, ना किसी युवा को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री भाषण देते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी, रोजगार देने वाली जो रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़ दिया। किसके लिए तोड़ा? हिंदुस्तान के 4-5 सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए। अब नए कानून लाए हैं, कृषि के 3 कानून। पहला कानून कहता है कि मंडियों को बंद करा जाएगा। पहले कानून का लक्ष्य मंडियों को बंद करो। दूसरे कानून का लक्ष्य जमाखोरी चालू करो। और तीसरे कानून का लक्ष्य, अगर कोई किसान सही दाम में कोर्ट में जाना चाहे तो उसको कोर्ट में जाना मना है। इसीलिए लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। हिंदुस्तान के किसान को वो आतंकवादी कहते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ ये कह रहा है कि जो हमारा है आप हमसे नहीं छीन सकते हो, हम आपको छीनने नहीं देंगे। 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की पूरी कृषि का जो बिजनेस है वो पकड़ाना चाहते हैं। यह हालत है देश की। यहां आए, असम आते हैं, आपसे वायदे कर जाते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने वायदा किया था कि टी गार्डन के वर्कर्स को वो उनका वेज बढ़ा के देंगे। आजकल आपको कितना पैसा मिलता है? कितना मिलता है पैसा? कितना? 167। सही। बीजेपी के लोगों ने आपसे क्या वायदा किया था? कितना? 351। अच्छा, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको 351 मिल रहा हो? एक भी नहीं मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर अभी भाषण दिए हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले ऐसे ही भाषण में मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। बीजेपी वालों ने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा हम पैसा निकाल के दिखा देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं और आप इस बात को चेक कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था। मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं। मैं आपसे 2-3 चीजें कहने आया हूं। मैं नरेंद्र मोदी जैसा नहीं हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं और टी गार्डन्स के जो हमारे वर्कर हैं उनसे कह रहा हूं
इसको आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो 6 घंटे के अंदर आपका 351 नहीं, आपका 365 हो जाएगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे, दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं कि 365 गारंटी देके आपको आ रहा है। सीधी बात है। हमने मनरेगा किया, बीजेपी के लोगों ने कहा पैसा जाया हो रहा है। हमने भोजन का अधिकार दिया, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। हमने किसानों का 70,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। जब भी हम गरीबों की मदद करते हैं, कमजोर लोगों की मदद करते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। और जब गुवाहाटी के एयरपोर्ट को वो अपने मित्र को बेच देते हैं तो फिर वो कहते हैं पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। मतलब उनके दिमाग में पैसा सिर्फ अमीरों के हाथ में होना चाहिए, पैसा गरीबों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इस चुनाव में आपने आपको 5 गारंटी दी हैं। पहली गारंटी मैंने आपको सुना दी, 351 नहीं 365, यह पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी यह है, ये बीजेपी वाले कितना भी नाच गाना कर लें, सीएए यहां नहीं आएगा। इसको हमने पूरे देश में रोक रखा है। दूसरी गारंटी है कि ये यहां नहीं आएगा, चाहिए कुछ भी कर लें। तीसरी गारंटी 200 यूनिट बिजली के हर परिवार को फ्री में। कितने नए बिजनेस हिंदुस्तान में खोले, कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। हम आपको यहां गारंटी करके कह रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देके दिखा देंगे। ये आसान काम नहीं है, मगर हम ये काम आपके लिए करके दिखा देंगे। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मामूली चुनाव नहीं है। बीजेपी असम की हिस्ट्री पर, असमीज भाषा पर, असम के इतिहास पर आक्रमण कर रही है। ये कहते हैं कि एक सोच होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। इस देश में अलग अलग सोच है, अलग अलग इतिहास है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग हिस्ट्री है। हम इन सब की रक्षा करते हैं। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि असम को नागपुर से चलाया जाए। बीजेपी चाहती है कि बाहर के लोग आए और जैसे इन्होंने आपका एयरपोर्ट लिया, वैसे ही जो आपका है वो लोग उठा के ले जाएं। हम असम को असम से चलाना चाहते हैं। हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा वो असम की जनता की बात सुनकर काम करेगा, उसका नागपुर से कुछ लेना देना नहीं होगा। यह फर्क है। तो यह चुनाव आपकी संस्कृति को बचाने का, आपकी हिस्ट्री को बचाने का,
आपकी भाषा को बचाने का चुनाव, यह इस चुनाव की सच्चाई है। और इसीलिए असम की जनता इस चुनाव में महाजोत को जिताकर ही दिखाएगी और बड़ी बहुमत से जीतेंगे। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए हैं, आपने मेरी बात इतने प्यार से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আপোনালোকৰ আমাৰ এই তিনিচুকীয়া জিলাৰ সমূহ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ নেতা শ্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ এই 27 তাৰিখে যি